So I hope you remember the discussion in the last class where we talked about ki why is the state defined in Article 12. Okay, there are two reasons. One is because fundamental rights are generally and largely available against the state. So this is why it was important to define ki what all does the state include, right? So what is the understanding of state and what all bodies can be said to be bound by fundamental rights. So defining the scope of state is extremely important when we talk about the applicability of Part 3 of the Constitution. Okay, that was the first reason. The second reason was as to why it is defined here and not in the definition part under Article 366 is because state as we perceive for the purposes of Article 12 is significantly different from the understanding of state in the other parts. Okay, so for example, if you look at any other part of the Constitution, a state means a state which is so stated in Schedule 1 of the Constitution. ठीक है, Schedule 1 में जो states दिए हुए हैं उनको state माना जाता है, जैसे कि आपके 27, 28 जितने भी states हैं currently, they are states for the purposes of the rest of the Constitution. So this is why it was important to define it here, because यहाँ पे state का एक अलग मतलब है और वो मतलब सिर्फ पार्ट 3 और पार्ट 4 पे अप्लाई होता है. ठीक है, यहाँ पे ऑल्दो सिर्फ पार्ट 3 की बात हुई है. पार्ट 4 में वी विल सी कि हाउ दे हैव taken the meaning of state from part 12, sorry, part 3, that is Article 12 itself. Okay, तो it's a very easy definition कि state क्या होगा हम already देख चुके हैं. State की definition बहुत easy है. There's only one part in it which requires clarification. ठीक है, state की definition is extremely simple. It includes government and includes legislature. ठीक है, दोनों levels पे government, central government as well as state government, and it includes legislature यानी कि parliament plus state legislature of all the states. ठीक है, very simple. Then it includes two other things. It includes local authorities, ठीक है, and it includes other authorities. Okay, तो local authorities तो आपको पता है कि आपकी जैसे municipalities, panchayats, all of those things, they will come under local authorities. Now this is the term that is other authorities जिसका मतलब clear नहीं है. मतलब what does other authority mean? तो इसके लिए भी you have to first look at the BERAC because it says कि other authorities within the territory of India or under the control of the government of India. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इंडियन एम्बेसी है किसी भी और देश में, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से द इंडियन एम्बेसी इन पाकिस्तान और इंग्लैंड और नॉर्वे और वेरेवर, तो इवन तो दे आर नॉट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट, बट दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो आपको समझना है कि अदर अथॉरिटीज की जो स्कोप है दैट इज नॉट लिमिटेड only to bodies which are in India, but it may also extend to bodies which are outside India but which are under the control of the government of India. ठीक है, जैसे कुछ important हमारे जो PSUs हैं, PSUs are covered in other authorities, right? वो other authorities में आते हैं and they are bound by fundamental rights. तो PSUs के कुछ offshore offices भी होते हैं, right? तो अगर हम सिर्फ ये argue करें कि it will include only bodies within the territory of India, then it will include these offices which are outside India, but which are very much under the control of government of India. Okay, so please understand other authorities mein any of this can happen. It could be within India or it could be under the control of the government of India. Okay. Now, whatever case laws are there on Article 12, they are on this very issue as to what are other authorities. ठीक है, तो आपको वो जो लैंडमार्क, देयर आर सम 5-6 लैंडमार्क जजमेंट्स, दोज यू विल हैव टू रिमेंबर. ओके, तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू कमिंग टू नाउ. ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं. आर्टिकल 12 पे आप, ठीक है, आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है और जैसा कि आपने देखा स्टेट को बहुत ही एक्सपेंसिव मीनिंग दिया हुआ. एक्सपेंसिव का मतलब होता है इट्स अ वेरी वाइड एंड ओपन एंडेड मीनिंग दैट हैज बीन गिवन. ठीक है, अदर अथॉरिटीज टर्म यूज करने का इंटेंशन ही यही था कि हम इसको क्लोज्ड नहीं रखेंगे स्टेट की डेफिनेशन को, क्योंकि द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स डिपेंड्स ऑन हाउ स्टेट इज डिफाइंड, राइट. अगर हम एक बहुत ही क्लोज्ड डेफिनेशन लें स्टेट की तो naturally a lot of bodies will be excluded out of it, meaning thereby that they will not be
constitutionally bound to respect the fundamental rights, and that in itself would make the importance of fundamental right a lot lesser. So that is why state has been given an expansive meaning under Article 12. ठीक है, अब स्टेट में क्या क्या इंक्लूडेड है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ऑल स्टेट्स, all local authorities and other authorities within the Indian territory or under the control of central government. ठीक है, अब डिफरेंट टाइप की अदर अथॉरिटीज हो सकते हैं. ठीक है, आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा के भी डिड्यूस कर सकते हो कि कौन सी बॉडीज को जनरली अदर अथॉरिटीज में आना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट आंसर वुड बी कि गवर्नमेंट बॉडीज को अदर अथॉरिटीज में कवर्ड होना चाहिए. ठीक है, जैसे कि government departments, government bodies, government officers, they all are covered under other authorities, and there is no problem in that. The problem arises in relation to bodies which are not necessarily discharging sovereign functions or which are autonomous. ठीक है, तो अगर कोई autonomous body है तो that can also be state if it fulfills certain conditions. ठीक है, अब एक ऑटोनॉमस बॉडी स्टैट्यूटरी भी हो सकती है, नॉन स्टैट्यूटरी भी हो सकती है. ठीक है, जैसे आपके जितने भी ये एनएलयूज हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, आई थिंक ऑल ऑफ देम, इफ नॉट मोस्ट ऑफ, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम, आई थिंक ऑल ऑफ देम एक्चुअली आर ऑटोनॉमस, है ना, एंड दे आर ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड बाय अ स्टैट्यूट. सो जनरली जो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं, जो कि किसी स्टैट्यूट से एस्टैब्लिश होती हैं, उनको जनरली कवर किया जाता है अदर अथॉरिटीज की डेफिनेशन. ठीक है, मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज में, कि अगर कोई नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी है, तो दैट इज वेयर इन द कंफ्यूजन कम्स इन कि हम कैसे डिड्यूस करेंगे कि वेदर दिस इज अ पार्ट ऑफ अदर अथॉरिटीज और नॉट. ठीक है, सो द होल आइडिया बिहाइंड अदर अथॉरिटीज इज it's multi-dimensional. ठीक है, there is no one test which can clarify कि this body will be state. ठीक है, there are different things which are seen. तो case laws पे आने के पहले भी we can still like by common sense deduce कि क्या क्या important चीजें हो सकती हैं. ठीक है, first of all हो सकता है function, कि body किस type का function discharge कर रही है, उस पर depend करेगा कई हद तक कि वो body state की definition में आनी चाहिए कि नहीं. ठीक है, तो फंक्शन से फर्क पड़ता है. फिर फर्क पड़ता है फंडिंग से, कि वेयर इज इट गेटिंग इट्स फंड्स फ्रॉम और हु इज कंट्रोलिंग इट्स फंड्स. ठीक है, और छोटा मोटा कंट्रोल नहीं, बट सिग्निफिकेंट कंट्रोल किसका है. तो फंडिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेस्ट. ठीक है, एक इन जनरल टेस्ट है कि हु हैज द कंट्रोल ओवर इट. ठीक है, मतलब जैसे मैनेजमेंट का कंट्रोल, हायरिंग एंड फायरिंग का कंट्रोल. सो हु हैज दैट काइंड ऑफ कंट्रोल ऑन दैट बॉडी, दैट विल ऑल्सो be an indicator of whether it is state or not. ठीक है, तो इस तरह के कुछ टेस्ट हैं जिनसे डिटरमाइन होगा कि कोई बॉडी स्टेट की इंस्ट्रूमेंटैलिटी है कि नहीं. ठीक है, ये टर्म बहुत रेलेवेंट है, इंस्ट्रूमेंटैलिटी. ओके, सी आपको ये सब, एज आई सेड, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट विच इज रिलेटेड टू ईच अदर, राइट, लाइक no provision exists in void, and it has to be understood in the larger scheme of the things. Okay, so we know that India is a welfare state, right? Like we have seen this couple of times now, and I hope you guys remember what a welfare state is. So now that India is a welfare state, of course the state has to undertake a lot of welfare functions, and in doing that स्टेट सारा कुछ तो खुद नहीं करती है ना, मतलब गवर्नमेंट खुद तो सारे फंक्शंस नहीं करती है. दे डू क्रिएट डिफरेंट बॉडीज हु डिस्चार्ज दीज फंक्शंस. ठीक है, तो जो पूरा टेस्ट होता है कि हम किसी बॉडी को अदर अथॉरिटीज में कब रखेंगे, वो टेस्ट बस इतना है कि वी हैव टू फाइंड आउट वेदर दैट बॉडी इज द इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द स्टेट और नॉट. ठीक है, वेदर स्टेट इज यूजिंग इट एज एन इंस्ट्रूमेंट टू फर्दर the functions that are given to the state. तो उसको डिसाइड करना होता है आपको कि कोई भी बॉडी स्टेट की इंस्ट्रूमेंटैलिटी है या नहीं, एंड दैट इज हाउ यू डिसाइड वेदर एनी बॉडी विल बी कवर्ड अंडर स्टेट और नॉट. ओके, सो दैट इज what has been laid down through different case laws. ठीक है, ये तो बहुत ही एक रिडक्शनिस्ट अंडरस्टैंडिंग है of Article 12. Now, what we actually need to remember in this whole part is
the case laws, क्योंकि case laws are the ones which have actually laid down these tests. ठीक है, तो as I said, Supreme Court has evolved the concept of instrumentality. Any body which can be regarded as the instrumentality of the state will be covered under other authority. ठीक है, अब ये इंस्ट्रूमेंटैलिटी किसी भी टाइप की हो सकती है, ये गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है, ये ऑटोनोमस बॉडीज हो सकती हैं, स्टैट्यूटरी हो सकती हैं, नॉन स्टैट्यूटरी हो सकती हैं. ओके, एनी काइंड ऑफ बॉडी कैन बी एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द स्टेट. ओके, अब हम आते हैं केसेस पे. देयर आर अ कपल ऑफ केसेस एंड इट्स वेरी एस्टैब्लिश्ड, है ना, कोई ऐसे डिबेट नहीं बची आर्टिकल 12 पे. सो इट्स प्रीटी एस्टैब्लिश्ड. सो देयर आर वेरी लेस न्यू डेवलपमेंट दैट हैपन. ठीक है, एक अभी 2022 में देयर वाज एक्चुअली अ केस, बट इट वाज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दिस टेस्ट. वहां पे एक बॉडी थी, सम ऑटोमेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया और समथिंग. तो उसमें क्वेश्चन ये था कि ये जो एक बॉडी है, क्या ये अदर अथॉरिटीज में आएगी. तो कोर्ट ने वहां पे सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज डिस्कस किए, जो भी हम देखेंगे. एंड देन कोर्ट ने देखा कि उस बॉडी पे किसका कंट्रोल है, कहाँ से फंडिंग मिलती है, मैनेजमेंट में कौन है. उसके बाद कोर्ट ने रिड्यूस किया कि उस केस में जो बॉडी थी वो स्टेट की इंस्ट्रूमेंटैलिटी नहीं थी. ठीक है, तो वही मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको ये नया टेस्ट नहीं आ रहा है. अब जनरली उनका सिर्फ एप्लीकेशन होता है, बिकॉज द टेस्ट हैव बीन लेड डाउन. ऑलराइट, so we come to the first case. The first case in this long list of cases is the case of Ujjambai versus state of UP, है ना. उज्जमबाई में 1961 में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया इंटेंट कि हम अदर अथॉरिटीज को लिबरली इंटरप्रेट करेंगे, है ना. इट विल नॉट बी अ रिस्ट्रिक्टेड इंटरप्रिटेशन, बिकॉज यही अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि कौन सी बॉडी फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है. ठीक है, तो कोर्ट बेसिकली हाईलाइटेड दैट रिस्ट्रिक्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ अदर अथॉरिटीज इज नॉट द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोली कि एडजस्टिम जेनेरिस रूल विल नॉट अप्लाई टू द टर्म other authorities. Okay, now I'm going to ask you guys, do you know what this rule is? Can you please type it out in the chat box if you know what is adjustum generis? It's a very famous principle of interpretation, and I'm sure you must have come across it sometime or the other. Right? I want everybody to answer. Guys, please participate in the discussion because it will help me understand what concepts you are already familiar with. Okay, Abraham has answered. What about others? What is adjustum generis? Okay, so adjustum generis is a rule of interpretation. Okay, I think all of you have like some idea from what I can see from your answers. तो adjustum generis rule जो है वो ये बोलता है कि अगर कहीं पे there are a couple of terms that have been used, ठीक है, तो उस केस में adjustum generis के रूल के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल there are 4 terms, है ना, and these 3 form a class. ये एक ही क्लास में फॉल करते हैं ना, मतलब ये एक ही टाइप के हैं. there is some common thing between the first 3 terms, let's say. okay, तो adjustum generis rule ये बोलता है कि ये जो लास्ट टर्म होगा, ये जो भी फ्रेज होगा, we will interpret this according to the class that exists here. ठीक है, मतलब ये जिस टाइप के हमने पिछले टर्म्स देखे उसी से डिसाइड होगा कि ये जो 4th टर्म है इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे. तो एज यू कैन सी ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव टेस्ट होता है ना. रिस्ट्रिक्टिव इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो 4th फ्रेज है उसका मीनिंग पिछले 3 फ्रेजेस की क्लास या वो किस टाइप के उनमें क्या कॉमन है, व्हाट इज देयर स्कोप, उससे डिसाइड होता है. ठीक है, ऑफ द सेम काइंड. So adjustum generis का मतलब है कि this last term will be interpreted in, we will assume that this also belongs to the same kind or the same category as the first 3 terms. ठीक है, क्योंकि इनको साथ में रखा है legislature ने, तो there must be some intention behind it as to why they have been clubbed together, right? तो कोर्ट ने बोला उज्जमबाई के केस में, which was again reiterated in the future cases, कि adjustum generis का रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा. ठीक है, ऐसा क्यों बोला उन्होंने, I'll just quickly show you. हाँ, ठीक है, तो कोर्ट का एसेंशियली ये मानना था कि ये जो चीजें जो आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स एंड लोकल अथॉरिटीज, कोर्ट सेड कि दे डू नॉट फॉर्म अ सेम क्लास. ठीक है, देयर इज नो कॉमन थिंग बिटवीन देम एंड दैट इज व्हाई adjustum generis कैन नॉट बी अप्लाइड टू इंटरप्रेट द स्कोप ऑफ अदर अथॉरिटीज. ठीक है, adjustum generis अप्लाई होने के लिए पहले एक सेम काइंड या सेम कैटेगरी होनी चाहिए. ठीक है,
तो कोर्ट का मानना था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में देयर इज नो कॉमनैलिटी, neither is there a commonality between these things and local authorities, and that is why aegis generis cannot have any application here. ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट ये था कि the scope of other authorities is definitely wider. Okay, I hope that's clear. Now we come to the second important case, that is a case of Rajasthan State Electricity Board versus Mohanlal. ठीक है, इस केस में भी मोरलेस कोर्ट ने वही बोला, कोर्ट ने कहा कि एजिस्टम जेनरिस रूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। एडिशनली कोर्ट ने ये भी बोला कि स्टैट्यूटरी जो बॉडीज हैं वो स्टेट की डेफिनेशन में कवर होंगी। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि फंक्शन से उतना फर्क नहीं पड़ता, इवन दो द बॉडी मे नॉट बी डिस्चार्जिंग सॉवरेन फंक्शन, इवन इट मे बी कमर्शियल इन नेचर, इवन देन द बॉडी विल बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट का मानना था कि जो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जो कि एक स्टैट्यूट के थ्रू सेटअप हुआ है, दैट विल बी एन अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 12। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि डज नॉट मैटर वेदर द फंक्शंस और सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बोर्ड आर कमर्शियल इन नेचर, that will not take away from the understanding that this body is other authority under article 12. ठीक है, उन्होंने कहा कि a statutory body will be covered under article 12 even if it is not discharging sovereign functions. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि sovereign functions ही discharge करने चाहिए। ठीक है, sovereign functions क्या होते हैं? sovereign functions थोड़े ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है कि स्टेट को क्या करना चाहिए, है ना, कि स्टेट का sovereign function क्या होगा, जैसे मेंटेनेंस ऑफ पुलिस, एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, प्रोटेक्शन ऑफ टेरिटरीज, प्रोटेक्शन ऑफ बाउंड्रीज। ठीक है, इनको जनरली सॉवरेन फंक्शंस माना जाता है क्योंकि ये सॉवरेन के ट्रेडिशनल फंक्शंस होते थे। दिस इज व्हाट स्टेट्स यूज्ड टू डू, बट नाउ दैट वी आर अ वेलफेयर कंट्री, we do not just discharge sovereign functions. There are a lot of welfare functions also which the state discharges. Okay, तो इस केस की फाइंडिंग ये है कि statutory bodies are covered under article 12 irrespective of the function that they are discharging. ठीक है, they may be discharging a commercial function also, even then they will be governed under article 12. Okay, so that is why Rajasthan State Electricity Board case is important. Now we come to the third important case, that is Sukhdev versus Bhagat Ram. Sukhdev versus Bhagat Ram में कोर्ट ने बोला, जो हम अभी टर्म पढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंटैलिटी, है ना, तो वो टर्म सुखदेव वर्सेस भगत राम में कोर्ट ने इवॉल्व किया। तो कोर्ट का मानना था कि LIC, ONGC एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन आर स्टेट अंडर आर्टिकल 12। कोर्ट ने कहा कि स्टैट्यूटरी बॉडीज का तो ठीक है, लेकिन इवन अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कैन बी ट्रीटेड एज अदर अथॉरिटी इफ इट इज एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी कि स्टैट्यूटरी बॉडीज तो कवर होंगी ही, लेकिन नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज कैन ऑल्सो बी स्टेट इफ दोज बॉडीज आर इन इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम बाकी के जो केसेस देखेंगे उनमें जनरली टेस्ट्स लेट डाउन होंगे कि किस केस में हम बोल सकते हैं कि कोई बॉडी इंस्ट्रूमेंटैलिटी या एजेंसी है। So the third important case is Sukhdev versus Bhagat Ram, a very important judgment. Okay. See, cases तो बहुत सारे थे, but again हम अपने discussions में सिर्फ landmark cases को refer करेंगे because we have to understand the scope of any discussion that can be undertaken on a subject as vast as constitution. Okay. Then we have the case of Sabhajit Tiwari versus Union of India. Now this was not a good precedent. ठीक है, not a good precedent. क्योंकि later on in the case of Pradeep Biswas, the court overruled this judgment. ठीक है, तो Sabhajit Tiwari has been overruled now. इस केस में कोर्ट ने बेसिकली एक गलत फाइंडिंग दी थी। कोर्ट का मानना था कि गवर्नमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट इज नॉट स्टेट। ठीक है, तो इस केस में ICSR, which was a company under the Companies Act, even though this body had गवर्नमेंट कंट्रोल एज वेल एज गवर्नमेंट फंडिंग, लेकिन इसके बाद भी कोर्ट ने बोला कि क्योंकि ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है इसीलिए इट इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 12. ओके, तो दिस इज नॉट अ गुड प्रेसिडेंट. दिस हैज बीन ओवररूल्ड इन द केस ऑफ प्रदीप बिस्वास, अ 7 जज बेंच डिसीजन. ठीक है, हम अभी उस पर भी.
तो सबजीत तिवारी हैज टू बी स्टडीड बिकॉज ये सीक्वेंस में आता है, लेकिन ये बाइंडिंग जजमेंट नहीं है, ठीक है। फिर हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट केस पे जो जनरली हर जगह साइट होता है। 3 केसेस हर जगह आपको मिलेंगे, आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, अजय हासिया एंड प्रदीप बिस्वास, ठीक है। इन तीनों में एक्चुअली टेस्ट लेड डाउन है। तो आर.डी. शेट्टी के जो टेस्ट थे वो अजय हासिया में कोर्ट ने रीइटरेट किए, ठीक है। तो हम वो दोनों टेस्ट साथ में देखेंगे। आर.डी. शेट्टी के केस में कोर्ट ने बोला कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी है विच इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, दिस इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 12, ठीक है। तो जो स्टैट्यूटरी बॉडीज से रिलेटेड पोजीशन थी दैट वाज क्लियर। नाउ इफ अ बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी देन आल्सो इट वुड बी कवर्ड, ठीक है, ये भी हमें पता है। अब जो टेस्ट है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ये जो टेस्ट है आर.डी. शेट्टी में ले डाउन किया था, अजय हासिया में इट वाज रीइटरेटेड अगेन, ठीक है। तो क्या टेस्ट था? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, हम जो भी टेस्ट देखेंगे वो एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पैरामीटर्स हैं और इसके अलावा कोई और पैरामीटर कंसिडर नहीं होगा, ओके। सो प्लीज अंडरस्टैंड नन ऑफ दीज टेस्ट्स आर एग्जॉस्टिव, इट डिपेंड्स ऑन अ केस टू केस बेसिस, है ना। केस पर डिपेंड करेगा कि whether the court feels कि this body is state or not। तो आर.डी. शेट्टी में कोर्ट ने कहा कुछ इंडिकेटर्स दिए, ठीक है। आप इनको इंडिकेटर्स मान सकते हो कि ये कुछ चीजें हैं जो इंडिकेट कर सकती हैं कि ये बॉडी इंस्ट्रूमेंटैलिटी है या नहीं, ठीक है। पहला, शेयर कैपिटल, कि अगर कोई कंपनी है और अगर उसकी पूरी शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि वो इंस्ट्रूमेंटैलिटी है ना। जैसे आपके PSUs होते हैं, उसमें गवर्नमेंट का काफी बड़ा शेयर होता है, अगर वो उसे लिक्विडेट करते हैं तो देन अगेन वो इंडिकेशन होता है कि गवर्नमेंट इंटेंड्स टू प्राइवेटाइज इट, है ना। इसीलिए आजकल जो भी चल रहा है कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्राइवेटाइज PSUs, गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्राइवेटाइज बैंक्स एंड रेलवेज एंड ऑल ऑफ दैट, दैट इज बिकॉज कि गवर्नमेंट का जो भी शेयर है उन ऑर्गेनाइजेशंस में वो उसे पब्लिक को सेल करेगी या और इंस्टीट्यूशंस को सेल करेगी, ठीक है। तो एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है वो होता है शेयर कैपिटल, कि अगर किसी भी कंपनी की पूरी शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर कि वो बॉडी स्टेट की इंस्ट्रूमेंटैलिटी है, ठीक है। फिर सेम फाइनेंसेस पे कि अगर जो गवर्नमेंट है, इफ द गवर्नमेंट इज गिविंग सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट, ठीक है, नॉट जस्ट एनी फाइनेंशियल असिस्टेंट बट सच फाइनेंशियल असिस्टेंस where most expenditure is incurred by the government, then also it is a strong indicator, ठीक है। अगर उस बॉडी को मोनोपोली दी गई है तो भी हम मान सकते हैं कि वो स्टेट की इंस्ट्रूमेंटैलिटी है, क्योंकि जनरली स्टेट मोनोपोली प्राइवेट बॉडीज को नहीं देती है ना। आपने 1906 पढ़ा होगा, 1906 में स्टेट चाहे तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ट्रेड प्रोफेशन उस पर दे कैन पुट अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ मोनोपोली पार्शियल और कंप्लीट ऑल्सो, ओके। तो अगर किसी बॉडी को मोनोपोली स्टेटस दिया गया है जो स्टेट प्रोटेक्ट कर रही है then that will also be a strong indicator। Existence of deep and pervasive state control, ठीक है। अगर डीप और परवेसिव स्टेट कंट्रोल है, अब ये आपको सिर्फ फैक्ट से ही समझ आएगा, है ना, क्योंकि डीप एंड परवेसिव कंट्रोल में कई सारी चीजें आ सकती हैं। इट कुड बी फाइनेंशियल कंट्रोल, इट कुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इट कुड बी management control, okay, it could be any kind of control, so it totally depends on facts and circumstances, okay. Now if the functions which are being performed by the body are of public importance or are closely related to government functions, then also strong indicator of instrumentality, ठीक है। तो आप जैसा कि देख रहे हो बहुत ही it's a mix of different kind of controls। financial control हो सकता है, administrative control हो सकता है, गवर्नमेंट अगर उन्हें कोई स्पेशल प्रिविलेज दे रही है और उसे प्रोटेक्ट कर रही है तो वो भी इंडिकेशन हो सकता है, ओके। सो इट्स नॉट जस्ट वन टेस्ट, हाँ, ठीक है। तो ये आर.डी. शेट्टी का ही टेस्ट था जो हमने अजय हासिया के केस में देखा। नाउ वी कम टू द सेकंड केस आफ्टर आर.डी. शेट्टी, दैट इज सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगेन अ लैंडमार्क केस। इस केस में कोर्ट ने फंक्शनल टेस्ट इवॉल्व किया, ठीक है। आपको इसी कीवर्ड की वजह से याद रखना है, फंक्शनल टेस्ट एंड दिस ऑब्जर्वेशन, ठीक है। बिकॉज आई थिंक आपको अभी तक जनरल अंडरस्टैंडिंग तो समझ आ गई है कि इंस्ट्रूमेंटैलिटी कब होगी, है ना। आई डोंट थिंक दैट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम विल बी देयर। द प्रॉब्लम दैट जनरली अराइजेस इज दैट यू विल probably not be able to remember the names of the cases, ठीक है। जैसे सोम प्रकाश का जो केस है, इट इज नोन फॉर द फंक्शनल टेस्ट
and for this observation. तो ऐसे questions भी एग्जाम में आ सकते हैं. ओके, तो इस केस में कोर्ट ने बोला था कि जो भी कंपनी है इस केस में, दैट इज स्टेट अंडर आर्टिकल 12, क्योंकि ट्रू टेस्ट ये नहीं है कि हाउ द बॉडी हैज बीन फ्रेम. ठीक है, दैट इज नॉट द ट्रू टेस्ट. द ट्रू टेस्ट इज कि व्हाई इट हैज बीन क्रिएटेड. ठीक है, तो डज नॉट मैटर एज टू हाउ द बॉडी हैज बीन क्रिएटेड, कि वेदर वो स्टैट्यूट से क्रिएट हुई है कि नहीं. ट्रू टेस्ट इज कि वो क्यों क्रिएट हुई है. तो द फंक्शनल टेस्ट एज टू व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट बॉडी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी अकॉर्डिंग टू सोम प्रकाश. ओके, उस केस में उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन भी दी थी जो कि बहुत लैंडमार्क है और जनरली एग्जाम्स में पूछी जाती है, कि अगर देयर इज अ ब्रूडिंग प्रेजेंस ऑफ द स्टेट बिहाइंड द ऑपरेशंस ऑफ द बॉडी, देन इट इज एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी. ठीक है, तो दिस कोड इज एसोसिएटेड विद दिस जजमेंट. Okay, now we come to the next case, that is the case of Ajay Hasia versus Khalid Mujeeb. Ajay Hasia again landmark case, क्योंकि अजय हासिया के केस में कोर्ट ने आर.डी. शेट्टी की ऑब्जर्वेशंस को साइट किया था और उन्होंने अपनी भी ऑब्जर्वेशंस दी थी. दे बेसिकली एक्सपैंडेड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी. ठीक है, तो इस केस में देयर वाज अ सोसाइटी, है ना, व्हिच वाज रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, और ये सोसाइटी वाज रनिंग एन इंजीनियरिंग कॉलेज. ठीक है, अभी जो इंजीनियरिंग कॉलेज था, दिस वाज स्पॉन्सर्ड, सुपरवाइज्ड एंड फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि इवन दो ये एक ऐसी बॉडी है जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर फॉर्म हुई है, इट इज स्टिल स्टेट बिकॉज द बॉडी इज स्पॉन्सर्ड, सुपरवाइज्ड एंड फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, तो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस था इस केस में गवर्नमेंट का टू दिस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग कॉलेज, इट वाज फाउंड टू बी something which makes this body an instrumentality of the state. So another important judgment so far as non-statutory bodies are concerned. तो इसी केस में, अजय हासिया के केस में, the court reiterated the test as was evolved in R.D. Shetty. Okay, now we come to the last and the most important case which has now finalized the test for Article 12. That is a 7-judge bench decision of Pradeep Kumar Biswas versus Indian Institute of Chemical Biology. ठीक है, इस केस में कोर्ट ने अपना खुद का टेस्ट तो दिया ही, उन्होंने ये भी कहा साथ में कि ये जो भी टेस्ट्स हैं ये ना तो एग्जॉस्टिव हैं ना ही रिजिड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर अजय हासिया के केस में जो 5-6 जो हमने गाइडिंग फैक्टर्स देखे थे, अगर उनमें से कोई फुलफिल नहीं हो रहा है तो वो बॉडी स्टेट नहीं होगी. दैट इज नॉट ट्रू. सो द कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हाईलाइटेड कि जो भी टेस्ट्स हैं दे आर नॉट एग्जॉस्टिव एंड नाइदर आर दे रिजिड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स. कोई भी बॉडी स्टेट होगी कि नहीं वो आप सिर्फ किसी भी केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस से डिसाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन दीज 3 थिंग्स. ठीक है, कि क्या वो बॉडी फाइनेंशियली, फंक्शनली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है. ठीक है, तो उन्होंने टेस्ट को थोड़ा और वाइडन कर दिया कि ठीक है, वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस होना चाहिए या कितना शेयर कैपिटल होना चाहिए गवर्नमेंट का. व्हाट वी आर गोइंग टू एसेंशियली से इज कि अगर गवर्नमेंट का फाइनेंशियल, फंक्शनल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है तो वी कैन सेफली से दैट द बॉडी इज स्टेट अंडर आर्टिकल 12. ठीक है, उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि अगर जो कंट्रोल है वो सिर्फ रेगुलेटरी है ना, अगर गवर्नमेंट ने सिर्फ रेगुलेशंस बनाए हैं फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट सो दैट देयर इज नो अब्यूज ऑफ पावर, देन दैट इन इटसेल्फ वुड नॉट मीन कि गवर्नमेंट हैज अ फंक्शनल कंट्रोल ओवर द बॉडी. ठीक है, तो सिर्फ रेगुलेशंस बनाने की वजह से उस बॉडी को हम ये नहीं बोल सकते कि इट फॉल्स अंडर आर्टिकल 12. ओके, सो प्रदीप बिस्वास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट. प्रदीप बिस्वास के केस में दे ऑल्सो ओवर रूल्ड द सबजीत तिवारी केस जो हमने देखा था, जहां पे कोर्ट ने बोला था कि ISCR विच इज अ कंपनी इज नॉट स्टेट अंडर आर्टिकल 12. ठीक है, कोर्ट का मानना था कि प्राइमरी टेस्ट इज फंडिंग एंड कंट्रोल. ऑलराइट, तो नाउ द पोजीशन इज सेटल्ड. एज यू कैन सी, ऐसा कोई रिजिड टेस्ट अभी भी नहीं है. टेस्ट वही है कि आप पूरे फैक्ट्स को कंबाइन करके देखते हो कि कोई बॉडी गवर्नमेंट के कितने कंट्रोल में है. ठीक है,
किस टाइप का फाइनेंशियल कंट्रोल है, किस टाइप का मैनेजमेंट कंट्रोल है, किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, ठीक है, बॉडी क्या फंक्शंस डिस्चार्ज कर रही है, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि वेदर दैट बॉडी इज स्टेट और नॉट. ओके, देन वी हैव टू अदर जजमेंट्स, छोटे से हैं. जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विच इज अगेन वेरी कॉमनली साइटेड. इस केस में कोर्ट ने बोला था कि जो बीसीसीआई है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट, दैट इज नॉट स्टेट अंडर आर्टिकल 12. ठीक है, उन्होंने कहा कि इवन दो इट डिस्चार्जेस पब्लिक ड्यूटी, बट जो उसके बाकी फंक्शंस हैं या जो भी बाकी पैरामीटर्स हैं, दे डू नॉट इंडिकेट टुवर्ड्स बीसीसीआई बीइंग स्टेट अंडर आर्टिकल 12. ये केस इसीलिए भी साइट किया जाता है क्योंकि कोर्ट ने इस केस में बोला कि बीसीसीआई इज नॉट स्टेट for the purposes of Article 32. But BCCI can be covered and be made responsible under Article 226. ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है और हर जगह इसीलिए साइट होती है. रीजन बीइंग that first of all you need to understand the difference between 32 and 226. ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? 32 is narrower, 226 is wider. 32 is narrower because the Supreme Court can be approached for Article 32 only for the violation of fundamental rights. ठीक है, if the fundamental rights are infringed, then you can approach the Supreme Court under Article 32 only for their implementation. ठीक है, as opposed to Article 226, which can be used to enforce fundamental rights as well as other provisions also. ठीक है, तो 226 में वाइडर पावर है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं बल्कि बाकी प्रोविजंस के लिए भी अगेंस्ट अदर बॉडीज आल्सो. इसीलिए कोर्ट ने बोला कि अगर हम 32 की बात करें तो वी विल बी बाउंड बाय द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12. कि आर्टिकल 12 में जो स्टेट है आप सिर्फ उसी के अगेंस्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 में. लेकिन आर्टिकल 226 वाइडर है और यहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है ना, क्योंकि 226 कैन बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट other people also, depending on which provision we are talking about. So the court said कि BCCI, because it discharges a public duty, can have some enforceability under Article 226, but not under Article 32. ठीक है, तो I hope you understand that. फिर उन्नी कृष्णन के केस में जो एक्चुअली राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है, उन्नी कृष्णन के केस में कोर्ट बेसिकली सेड कि जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो स्टेट की इंस्ट्रूमेंटालिटी में कवर नहीं होंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि इवन तो उनके ऊपर रेगुलेशंस स्टेट बनाती है. अगर कुछ जनरल रेगुलेशंस है, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्कूल है एंड इट इज अफिलिएटेड विद सीबीएसई और आईसीएसई, है ना, देन दे विल बी बाउंड बाय दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस, व्हाट नॉट. ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दे विल बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. ठीक है, तो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस स्टेट के इंस्ट्रूमेंटालिटी नहीं होते हैं. ओके, सो दैट इन एसेंस sums up our understanding. I think somebody has a doubt. Ankit, do you want to say something? Okay. चलो, है ना, I hope this is clear because now we are moving on to the second subtopic कि whether judiciary is covered under state or not. ठीक है, something which I think somebody asked in the last class also. Okay, now we come to the issue of whether judiciary is covered under state or not. ठीक है, आप अगर state की definition देखोगे तो वहां पे कहीं कोई indication नहीं है कि judiciary is also covered, क्योंकि it includes government of India, government of states, parliament of India, state legislature, लोकल एंड अदर अथॉरिटीज. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अगर दो ऑर्गन्स के क्लियरली नाम इंक्लूड किए हैं और तीसरे का अगर नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑफ कोर्स नॉट कवर्ड. ठीक है, दूसरा, जुडिशरी इज नॉट अदर अथॉरिटीज अंडर आर्टिकल 12. ठीक है, तो कोर्ट ने नरेश श्रीधर मिराशकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड AR अंतुलय वर्सेस RS नायक के केस में बोला है कि जुडिशरी इज नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12. No fundamental right can be said to be infringed by a judicial order or a judicial decision. ठीक है, फिर रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा के केस में अगेन कोर्ट ने बोला
कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कैन नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो जुडिशरी इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 12। लेकिन व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस कि कोई भी अगर जुडिशियल बॉडी की आप बात कर रहे हो तो इट डिस्चार्जेस टू फंक्शंस, ठीक है। पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जुडिशरी का वो है जुडिशियल फंक्शन। जुडिशियल बोल सकते हो, एडजुडिकेटरी बोल सकते हो, है ना। ये फंक्शन जहां पे वो एक्चुअली लोगों के डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करते हैं, ओके। ये उनका प्राइमरी फंक्शन है। लेकिन क्योंकि वो एक बॉडी है तो ऑब्वियसली उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी होंगे, है ना। अब जैसे जजेस हैं, जजेस की सैलरीज, जजेस के प्रमोशंस, जजेस के ट्रांसफर, जजेस का स्टाफ क्या होगा, स्टाफ के कंडीशंस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होंगे, कैसे रिक्रूट होंगे, उनकी सैलरीज कैसी होंगी, उनके टर्मिनेशन कैसे होंगे, ठीक है। तो जुडिशरी का एक पार्ट तो होता है जुडिशियल डिसीजंस देना, जो कि उसका प्राइमरी फंक्शन है ना। लेकिन दूसरा उनका एक और फंक्शन होता है जो किसी भी बॉडी का होता है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, व्हेन दे आर सपोज्ड टू रेगुलेट देयर ओन सेल्फ, कि कैसे बाकी चीजें फंक्शन करेंगी, ठीक है। तो कोर्ट ने प्रेमचंद गर्ग वर्सेस एक्साइज कमिश्नर के केस में क्लैरिफाई किया कि जुडिशरी जब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस डिस्चार्ज करती है तो देन इट इज स्टेट अंडर आर्टिकल 12, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे अभी जो हुआ था देवीना शर्मा के केस में, ठीक है, देवीना शर्मा वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, आई थिंक नाम था केस का। तो इस केस में द इशू वाज कि जो अभी दिल्ली जुडिशरी का जो नोटिफिकेशन आया था डीजेएस और डीजेएचएस का, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ प्रोविजंस को चैलेंज किया था कि वन टाइम एक्सेप्शन मिलना चाहिए, एज लिमिट हटा देनी चाहिए, ठीक है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, है ना। वो हमारे लिए अभी रेलेवेंट नहीं है इश्यूज इस केस के, बट द इशू इज कि द केस वाज अगेंस्ट हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, ठीक है। अब हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के अगेंस्ट केस कैसे हो सकता है? वो हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, ओके। क्योंकि जुडिशरी का एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ये भी होता है कि एग्जाम्स कंडक्ट करा के जजेस को रिक्रूट करना, ठीक है। कुछ कुछ स्टेट्स में ये काम पीएससी करती है, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन। कुछ केसेस में जुडिशरी खुद करती है, जैसे दिल्ली जुडिशरी खुद अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है। सेम अप्लाइज फॉर आई थिंक मध्य प्रदेश ऑल्सो। मध्य प्रदेश में भी इट्स मध्य प्रदेश हाई कोर्ट विच कंडक्ट्स इट। बिहार में आई थिंक इट्स बिहार पीएससी, ठीक है। तो क्योंकि अब जो जुडिशरी है जो अगर एग्जाम कंडक्ट करा तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है ना। ये कोई जुडिशियल फंक्शन तो नहीं है। जुडिशियल फंक्शन सिर्फ वो होते हैं जहां पे जज डिसीजंस देते हैं, जहां पे एडजुडिकेटरी फंक्शन होता है। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के अगेंस्ट केस किया जा सकता है, which means that the administrative side of the judiciary is very much covered under the definition of state, ठीक है। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था जो आप आई थिंक आप सबने सुना होगा, स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना। तो अब यहाँ पे जो दूसरी पार्टी है रिस्पोंडेंट्स, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। तो ये कैसे हैं? इसीलिए है अगेन क्योंकि यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की बात थी, ओके। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि जुडिशरी अपने जुडिशियल रोल में स्टेट की डेफिनेशन में कवर नहीं होती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में इट इज कवर्ड, ओके। एंड देयर इज सम लॉजिक टू इट ऑल्सो, क्योंकि आप इमेजिन करो कि आर्टिकल 12 में जो जो स्टेट होते हैं, आपके पास रेमेडी क्या है उनके अगेंस्ट, कि आप आर्टिकल 32 के अंदर यू कैन गो टू द कोर्ट फॉर देयर एनफोर्समेंट, राइट। अब अगर आप जुडिशरी को भी आर्टिकल 12 में कवर कर लोगे ऑन द जुडिशियल साइड, तो हाउ वुड दैट पैन आउट, राइट। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल there's a separate system of appeals altogether which is available against judicial decisions, ठीक है। तो मान लीजिए अगर जुडिशरी ने लेट्स से अगर हाई कोर्ट ने कोई गलत डिसीजन दिया भी है, तो इट कैन बी अपील्ड थ्रू द प्रोसेस दैट इज प्रोवाइडेड, ओके। covering it under article 12 will not be of much help anyway. So article 12 के अंदर judiciary on the judicial side is not covered, okay. Administrative side पे it is very well covered. Now we come to local authorities. Local authorities पे कुछ ज्यादा relevant cases नहीं हैं. Local authority में generally ये चीजें include होती हैं, जैसे कि municipal board, town area committee, notified area committee, पंचायत, municipal corporations, etc. Okay. तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक होंगे केसेस एंड अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 12 इटसेल्फ, ठीक है।
मैं आपकी स्क्रीन पे आई जस्ट राइट द नेम ऑफ द रीसेंट केस ऑल्सो, किशोर मधुकर पिंगलीकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये केस 2022 में ही आया था, जहां पे इशू ये था कि कोई बॉडी थी, मुझे इसका पूरा नाम याद नहीं है, बट देयर वाज सम ऑटोमेटिव एसोसिएशन करके कोई बॉडी थी। क्वेश्चन ये था कि क्या ये बॉडी स्टेट है अंडर आर्टिकल 12। ठीक है, तो कोर्ट एनालाइज द डिसीजंस ऑफ अजय हासिया, आर डी शेट्टी, प्रदीप बिस्वास, एंड द कोर्ट सेड कि नो, दिस बॉडी इज नॉट स्टेट अंडर आर्टिकल 12, क्योंकि उन्होंने इस बॉडी का कॉम्पोजिशन देखा। ठीक है, कि ये बॉडी का फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन क्या है, तो उन्होंने देखा कि ये जो बॉडी है ये सिर्फ जो भी ऑटोमेटिव प्रोड्यूसर्स हैं हमारी कंट्री में, जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए उन्होंने खुद की एसोसिएशन बनाई है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का ना तो कोई कंट्रोल है ना कोई फंडिंग है। गवर्नमेंट के कुछ 2-3 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं, बट द कंट्रोल इज नॉट सच विच कैन बी सेड टू बी मेकिंग इट स्टेट अंडर आर्टिकल 12। ठीक है, तो कोर्ट का मानना था कि जो भी कंट्रोल है वो म्योरली रेगुलेटरी है एंड द बॉडी इन इटसेल्फ इज नॉट स्टेट। ओके, तो किशोर मधुकर पिंगलीकर इज द recent case on this point. I hope this is clear, because if it is, then we can move forward to Article 13. Okay, now we come to Article 13, another very important article for you to understand before we actually move on to different fundamental rights under the Constitution. ठीक है, अब आर्टिकल 13 जो है इसको बोला जाता है कि दिस टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, दिस इज द ओरिजिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू और द जस्टिशियबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जैसे आर्टिकल 32 इज वेरी करेक्ट कि आर्टिकल 32 एंड 226 गिव सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट द पावर टू directly actually decide on cases which talk about infringement of fundamental rights. ठीक है, लेकिन इस पावर का ओरिजिन क्या है, कि क्यों जो भी अगर कोई लॉ है, अगर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन है, इफ इट इज नॉट कंप्लाइंग विद फंडामेंटल राइट्स, देन व्हाई इट कैन बी चैलेंज्ड। ठीक है, तो ये जो पावर है दैट एग्जैक्टली हैज बीन गिवन इन आर्टिकल 13। ठीक है, आर्टिकल 13 बोलता है ब्रीफ में कि अगर कोई भी लॉ है और अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, यानी कि वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, तो वो लॉ that law will be unconstitutional. ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल टर्म उन्होंने नहीं यूज किया, उन्होंने टर्म यूज किया है void. ठीक है, बट आइडिया यही है कि कोई भी अगर लॉ है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करेगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही फंडामेंटल राइट्स को वो स्टेटस देता है जिसकी वजह से दे आर सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जिसकी वजह से दे आर इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन द लॉज ऑफ द कंट्री, यानी कि कोई भी लॉ हमारे कंट्री का फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। ठीक है, आर्टिकल्स 14 से लेके 35 में जो भी बात लिखी हुई है उसको एनी लॉ कैन नॉट इन्फ्रिंज। ओके, सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आर्टिकल 13 सेज। अब ये डिवाइडेड है, ऑफ कोर्स, एक पार्ट डील करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से और एक पार्ट डील करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से। ठीक है, अंतर कुछ भी नहीं है, लाइक आप पढ़ोगे तो दोनों का कॉन्सिक्वेंस सेम है, even if it is a pre-constitutional law or a post-constitutional law, both will be void if they violate the fundamental right. लेकिन जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है वो थोड़ी डिफरेंट है, and that is why it has been covered in different parts, 13.1 and 13.2. ठीक है, फिर उन्होंने लॉ की डेफिनेशन दी है कि अगर हम लॉ बोल रहे हैं तो लॉ का क्या मतलब है। ठीक है, क्योंकि लॉ का मतलब सिर्फ लेजिस्लेशन नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में, लॉ की भी जो डेफिनेशन है दैट इज वाइडर। ठीक है, फिर लॉज इन फोर्स भी डिफाइंड है, और लास्टली ये जो कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। ओके, तो नाउ वी विल टेक अ लुक एट ऑल ऑफ दिस। ऑलराइट, अब 13.1 बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। ठीक है, अब आपको पता है कि we have retained a lot of laws that were made during the time of Britishers. ठीक है, India got freedom in 1947 and then the constitution came in 1950. लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ बहुत मेजर जो लॉज हैं वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इरा के ही हैं। ठीक है, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट, आईपीसी, एविडेंस लॉ, सीपीसी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ठीक है,
there are hundreds of laws which are pre-constitutional in nature. ठीक है, तो 13(1) पर्टिकुलरली बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, और उनको वो बोलता है लॉज इन फोर्स. ठीक है, इनको लॉज इन फोर्स बोला गया है क्योंकि ये लॉज आर ऑलरेडी इन फोर्स व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस. ठीक है, तो अब इन लॉज का क्या होगा, क्योंकि जब ये बने थे तब तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, यानी कि तब उस टाइम पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि ये फंडामेंटल राइट्स के साथ कंप्लाई करे, है ना, क्योंकि दे वर मेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन केम, बिफोर फंडामेंटल राइट्स केम. तो इसीलिए जो भी टर्म्स आप यहाँ पे देखोगे, टर्म दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द टर्म्स व्हिच हैव बीन यूज्ड फॉर द सेम थिंग इन 13(2). ठीक है, तो पहले 13(1) देखते हैं. All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency be void. ठीक है, तो वो ये बोल रहे हैं कि जो भी laws हैं जो इंडिया में in force हैं, if they are inconsistent with fundamental rights, ठीक है, तो वो उस इनकंसिस्टेंसी की एक्सटेंट तक दे विल बी वॉइड. ठीक है, तो पहली बात तो ये जो एक्सप्रेशन है टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी, ये बात करता है आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पूरा लॉ है वो वॉइड नहीं होगा. ठीक है, सिर्फ उतना लॉ जो एक्चुअली फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है दैट विल बी वॉइड. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका आर्टिकल 377 वॉज हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्शियली, है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि 377 अगर फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है तो पूरा आईपीसी वॉइड हो जाएगा, है ना. इवन 377 इन इटसेल्फ वाज नॉट हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल फुल्ली. ओके, इट वाज ओनली हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन सो फार एज इट क्रिमिनलाइजेस कंसेंशुअल होमोसेक्सुअलिटी बिटवीन इंडिविजुअल्स. ठीक है, तो सिर्फ उस एक्सटेंट तक वॉइड डिक्लेयर किया था. तो टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की, कि पूरा लॉ डज नॉट हैव टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड, only that part which is actually inconsistent, only that much portion can be void. The rest of the law can be presumed to be constitutional. Okay, so 13(1) बात करता है laws in force की, and it basically says that they will be void if they are inconsistent. Okay, 13(2) बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, यानी कि जो भी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद बने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट. ठीक है, अब इस टाइप की टर्मिनोलॉजी 13(1) में आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि 13(1) में वो लॉज ऑलरेडी इन फोर्स थे. 13(2) में वो बात करता है स्टेट की पावर की, कि नाउ दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इन्फोर्स्ड, नाउ द स्टेट विल नॉट मेक एनी सच लॉज. ठीक है, तो ये स्टेट की कॉम्पिटेंस की ही बात करता है कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void. ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंस दोनों का सेम है, कॉन्सिक्वेंस में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो टर्म्स यूज किए हैं, जो डायरेक्शंस यूज किए हैं वो डिफरेंट है ना. 13(2) स्टार्ट कैसे होता है, 13(2) स्टेट की रिस्ट्रिक्शंस बता रहा है कि स्टेट ऐसा कोई लॉ बना ही नहीं सकती जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करे, और अगर ऐसा कोई लॉ बना तो वो लॉ बिकॉज ऑफ दैट कॉन्ट्रावेंशन दैट विल बी वॉइड. ठीक है, तो दोनों के कॉन्सिक्वेंस सेम है, यानी कि जो लॉ है वो वॉइड होगा, लेकिन द टर्म्स, द टर्मिनोलॉजी दैट हैज बीन यूज्ड, द वर्ड्स दैट हैव बीन एम्प्लॉयड इज डिफरेंट. ओके, बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स. ऑलराइट, सो दैट इज वन, है ना. 13(1) 13(2) सबसे इंपॉर्टेंट है. अब हमने बिकॉज वी सॉ two terms, यानी कि laws in force and laws, तो now we need to define them कि इनका क्या मतलब है. तो 13(3) defines them. 13(3) says in this article, ठीक है, very important, ये सिर्फ इस आर्टिकल के लिए डेफिनेशन है. In this article, unless the context otherwise requires, law includes this, laws in force includes this. ठीक है, तो ये पूरा क्लॉज वाइज आपको याद होना चाहिए कि 13(3)A डिफाइंस लॉ, 13(3)B डिफाइंस लॉज इन फोर्स. ओके,
अब लॉ की डेफिनेशन बहुत वाइड है. इट इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, जो प्रेसिडेंट बनाते हैं, orders, bylaws, rules, regulation, notification, custom or usage having in the territory of India the force of law. ठीक है. तो लॉ की डेफिनेशन में लॉज तो इंक्लूडेड हैं, लॉ यानी कि लेजिस्लेशन, दैट इज इंक्लूडेड, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom or usage which is having in the territory of India force of law. Okay, so it's a very wide definition. So even administrative जो actions होते हैं, they are also covered. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डिनेंस तो चलिए प्रेसिडेंट बनाते हैं, ऑर्डर्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज देती हैं, bylaws again, rules, regulations, all of these are something which are made by the administrative authorities. Okay, so those have also been included. Laws in force have also been defined. Laws in force का मतलब है it includes laws passed or made by a legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas. ठीक है, all in all laws in force में ऐसा कोई भी लॉ जो कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाया हो, ठीक है, और जो रिपील ना हुआ हो, क्योंकि अगर वो रिपील हो गया है तो दैट मीन्स इट इज नॉट अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट. ठीक है, तो कोई भी लॉ विच हैज बीन मेड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज लॉज इन फोर्स फॉर द पर्पसेस ऑफ 13(3)(b). 13(4) बात करता है, this was actually added by the 24th amendment which actually also made important changes in article 368. ठीक है, article 368 which is the amending power of the constitution. ठीक है, तो 13(4) बोलता है कि nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under article 368. ठीक है, तो ये पार्लियामेंट ने इसीलिए ऐड किया था 24th अमेंडमेंट से, बिकॉज दे इंटेंडेड टू टेक अवे द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन अमेंडमेंट्स. ठीक है, वो चाहते थे कि पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 में अनब्रिडल्ड पावर हो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, इसीलिए दे इंसर्टेड 13(4). ठीक है, बट नाउ नन ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज केशवानंद भारती के केस में कोर्ट ने कहा कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो, you can amend them. The only thing that you have to consider is that you cannot change the basic structure. Okay, so 13(4) is again not something which it didn't basically have the impact which the parliament intended it to have. Okay. So that is article 13. Now we will be looking at a few doctrines and some important case laws on article 13. आर्टिकल 13 है जस्टिशियबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ये बात करता है जुडिशियल रिव्यू ऑफ ऑल लॉज. आर्टिकल 13 सिर्फ स्टैट्यूटरी लॉ से डील करता है, स्टैट्यूटरी लॉ और भी बाकी चीजें जो दी हुई हैं. इट डज नॉट इंक्लूड जज मेड लॉ. ठीक है, जैसे वी नो दैट अंडर आर्टिकल 141 इट इज अज्यूम्ड दैट जो भी लॉ है दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, राइट. सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जजमेंट है तो आपको पता है कि द जजेस ऑल्सो मेक लॉ. ठीक है, उसको जज मेड लॉ बोलते हैं, जो कि प्रेसिडेंट्स के थ्रू वी सी. तो आर्टिकल 13 में जो लॉ की डेफिनेशन है वो सिर्फ लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ और लेजिस्लेशन, रेगुलेशन, रूल्स, नोटिफिकेशन उसको कवर करती है, ना कि जज मेड लॉ को. एंड दिस फाइंडिंग वाज गिवन इन अशोक कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. ठीक है, अब जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है यानी कि आर्टिकल 13 की जो पावर है, that in itself is a part of basic structure. ठीक है, तो कल को पार्लियामेंट उसे अमेंड नहीं कर सकती क्योंकि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर as was held in Keshavanand Bharti's case. Okay. Now definition of law is wide, we already know that. ठीक है, ये सब हमें ऑलरेडी पता है. अब हम आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो जनरली आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेदर पर्सनल लॉज आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ और नॉट. ठीक है, अब आपको यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा कि कोर्ट्स हैव ऑलवेज बीन रिलक्टेंट इन टेस्टिंग पर्सनल लॉज ऑन द एनवेल ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, कोर्ट्स नहीं चाहते कि वो ये काम करें, एंड दैट हैज बीन विजिबल
throughout the history of the judgments that have been given by the courts, that they do not intend to interfere in the personal laws of the country. Okay? What the best way that the courts have felt is that the parliament should step in and make laws to address the matter, because this is a policy issue. ठीक है? तो इसीलिए even till date, even after like 75 years of independence, we still have personal laws which are derogatory to fundamental rights. ठीक है? आप कितने ही एग्जाम्पल्स देख सकते हो पर्सनल लॉस के जो आपको खुद को पता है कि आर्टिकल 14, 15 को ऑफेंड करेंगे, है ना? कई सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं हर रिलीजन में which offend article 14 and 15. ठीक है? फिर ऐसा क्यों है कि why have they still not been struck down? The whole reason is because the court has held that personal law is not covered in the definition of law itself. ठीक है? ये इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कोर्ट ने इस बारे में कभी भी एक्सप्लिसिट फाइंडिंग नहीं दी है कि पर्सनल लॉज आर लॉज एज पर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 13. Okay, and this is why there hasn't really been any such case which has actually directly dealt with this point. ठीक है? सबरीमाला के केस में अभी recently, not सबरीमाला, ट्रिपल तलाक के केस में कोर्ट डिड हेल्ड दैट दिस प्रैक्टिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन उन्होंने ऐसा इसीलिए नहीं बोला बिकॉज दे थॉट दैट पर्सनल लॉज आर लॉज अंडर आर्टिकल 13 or because triple talaq violates article 14 or 15. The reason why this was held to be unconstitutional was because it was said that this is not an essential religious practice of Islam. ठीक है? तो आर्टिकल 25 के रूट के थ्रू गए, which is थोड़ा सा डिफरेंट jurisprudentially speaking, क्योंकि वहां पे आप देखते हो कि अगर कोई प्रैक्टिस एसेंशियल नहीं है उस रिलीजन के लिए तो उसे स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 25. ओके? लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि पर्सनल लॉज क्या लॉ होंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ आर्टिकल 13, दैट हैज नेवर बीन डेल्ट डायरेक्टली बाय द सुप्रीम कोर्ट इन क्लियर टर्म्स. ठीक है? और हमारे पास इसकी जो अथॉरिटी है दैट इज एक्चुअली अ बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इवन टिल डेट. ठीक है? बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 जज बेंच ने, इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरासू अप्पा माली, कोर्ट सेड कि पर्सनल लॉज आर नॉट कवर्ड इन आर्टिकल 13. ठीक है? तो उन्होंने कहा कि जो लॉज इन फोर्स की डेफिनेशन है 13(3)(b) में, उसमें पर्सनल लॉज कवर्ड नहीं होंगे. ठीक है? तो दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग इन नरासू अप्पा माली व्हिच हैज बीन कैरीड थ्रू आउट द इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑन दीज इश्यूज इवन इन द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है? अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट ने पॉलीगैमी की जो प्रैक्टिस है मुस्लिम लॉ में, दे रिफ्यूज टू टेस्ट इट ऑन आर्टिकल 14 and 15, saying that this matter has to be taken care by the legislature as it is a matter of state policy. ठीक है? तो courts have been reluctant to hold anything on personal laws because they feel that this is the work of the parliament and parliament should enact suitable laws and whatever has to be done in furtherance of article 44 of the constitution to actually make reforms in personal laws. ठीक है? तो personal laws क्या लॉ होंगे, इसके लिए अथॉरिटी विल बी स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरासू अप्पा माली, एंड द आंसर टिल डेट इज नो, दे आर नॉट लॉज फॉर आर्टिकल 13. ठीक है? ओके, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरासू अप्पा माली के केस में कोर्ट इंटरप्रेट कर रहे थे कि पर्सनल लॉज को हम कैसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो भी पर्सनल लॉज है वो ऑफ कोर्स प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ही है ना? अगर हम अनकोडिफाइड लॉज की बात करें, जैसे अगर अब हम हिंदू लॉ की बात करें, तो नाउ हिंदू लॉ इज कोडिफाइड एंड इट इज गिवन इन लेजिस्लेशंस which have been enacted in 1955, 1956. ठीक है? तो वो 13(3)(b) में कवर एनीवे नहीं होते हैं, they will be covered under 13(3)(a) because there's a very direct legislation. लेकिन इस केस में when the court was hearing the matter, the court said कि जो personal law in general है, that is not law in force under article 13(3)(b). ठीक है? 2 जज बेंच थी, दोनों जजेस की अपनी अपनी रीजनिंग थी. चीफ जस्टिस चागला की एक रीजनिंग थी एंड जस्टिस गजेंद्रकर की अपनी रीजनिंग थी.
ठीक है, ये थोड़ा डिटेल डिस्कशन है, रेलेवेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है, कि इन दोनों की रीजनिंग क्यों डिफरेंट थी। चीफ जस्टिस चावला का मानना था कि कस्टम और यूसेज वुड बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ लॉज इन फोर्स। ठीक है, हमने अभी डेफिनेशन देखी थी लॉ एंड लॉज इन फोर्स की। हमने देखा कि लॉ की डेफिनेशन में काफी सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, इंक्लूडिंग कस्टम और यूसेज, है ना। आई होप आपको याद हो लॉ में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर, नोटिफिकेशन, व्हाट डू यू कॉल, ऑर्डिनेंस, कस्टम्स, यूसेजेस, राइट। 13(3)A में दिस इज हाउ लॉ हैज बीन डिफाइंड। लेकिन अगर हम लॉज एंड फोर्स की डेफिनेशन देखें तो वो बहुत छोटी सी डेफिनेशन है कि अगर कोई भी लॉ, इफ इट वाज इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट और कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड, देन इट इज लॉ एंड फोर्स। ठीक है, तो चीफ जस्टिस चावला का मानना था कि इवन दो लॉज एंड फोर्स में उन्होंने कहीं पे ये टर्म यूज नहीं किया है, लेकिन तब भी अगर हम डेफिनेशन देखें तो कस्टम और यूसेज आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ लॉज एंड फोर्स। ठीक है, लेकिन गजेंद्र गडकर का मानना था कि कस्टम और यूसेज कहीं भी लॉज एंड फोर्स की डेफिनेशन में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए कस्टम्स और यूसेजेस विल नॉट फॉल विद इन द एक्सप्रेशन ऑफ लॉज इन फोर्स। ठीक है, तो फिर चीफ जस्टिस चावला ने जब वो कह रहे हैं कि कस्टम और यूसेज लॉज इन फोर्स की डेफिनेशन में फॉल करेगा, तो व्हाई डिड ही से दैट पर्सनल लॉज आर नॉट कवर्ड? ओके, द रीजन व्हाई जस्टिस चावला सेड दैट पर्सनल लॉज are not laws in force is because he said कि personal laws are not equivalent to custom or usage। ठीक है, उनका मानना था कि कस्टम और यूसेज एक अलग चीज होती है, लेकिन पर्सनल लॉज कस्टम और यूसेज की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इवन दो कस्टम और यूसेज विल बी कवर्ड अंडर 13(3)B, but personal laws will not be, because personal laws are not included in the definition of custom or usage। फिर उन्होंने कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स थे, लॉज थे, उनको साइट किया और कहा कि जहां जहां पे दे वांटेड पर्सनल लॉज टू बी कवर्ड, दे इंक्लूडेड देम अलग से। ठीक है, दे हैड कस्टम्स और यूसेजेस एज वेल एज पर्सनल लॉज, एंड बिकॉज यहाँ पे देर इज अ omission, because personal laws term has not been used anywhere in 13(3)A or 13(3)B, this is why Chief Justice Chagla was of the opinion कि personal law 13(3) में कवर नहीं होंगे। ठीक है, जस्टिस गजेंद्र गडकर का तो मानना ही ये था कि कस्टम और यूसेज ही 13(3)B में कवर नहीं होंगे। ओके, सो दैट इज हाउ द रीजनिंग डिफर्ड। ऑफ कोर्स आपको ये समझने के लिए थोड़ा और केस पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इट इज a lot complicated, lot more complicated than what we have just seen। Okay, but all in all the short understanding is कि पर्सनल लॉज को दोनों जजेस ने माना कि वो लॉ की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रिपल तलाक के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट डिड डिस्कस दिस केस, बट उस केस में भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने ओपिनियन में कहा कि दिस इज नॉट द राइट जजमेंट इन विच वी कैन चैलेंज नरासू अप्पा माली। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ इस ओपिनियन के थे कि वी नीड टू लुक इनटू द करेक्टनेस ऑफ नरासू अप्पा माली इन एन अप्रोप्रिएट केस। ठीक है, तो ट्रिपल तलाक में ऑल्दो थोड़ा डिस्कशन हुआ, लेकिन कोर्ट ने वहां पे भी मना कर दिया कि हम इस केस की करेक्टनेस में इस जजमेंट में नहीं जाएंगे। ओके, सबरीमाला, yeah, so basically both in Sabrimala as well as in triple talaq, the court refused to look into the correctness of this case। अब हम आते हैं 13(1) और 13(2). ठीक है, 13(1) deals with pre-constitutional laws, 13(2) deals with post-constitutional laws। okay, अब now we know कि जब कोई लॉ वॉइड होता है तो वो अनएनफोर्सेबल होता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, अब ये एक्सेप्शंस क्यों हैं? क्योंकि there could be two things, है ना, which have been clarified in the 2 points that you can see। First is that fundamental rights, some fundamental rights are only available to citizens and some fundamental rights are available to all persons। ठीक है, तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई लॉ है जो सिटीजन्स के अगेंस्ट वॉइड है, ठीक है, मान लीजिए बिकॉज आर्टिकल 19, right, like we know article 19 is only available to citizens। ठीक है,
अब मान लेते हैं पार्लियामेंट हैज इनैक्टेड सम लॉ which the court feels is violative of Article 19(1). Okay. Now, if this law is violative of Article 19(1), that means it is void, right? लेकिन we know that Article 19(1) के जो freedom है ये तो सिर्फ citizens को मिलते हैं. तो अगर कोई non citizen है तो that non citizen does not have the fundamental right given under Article 19(1). Okay. तो ये जो law है this can be enforced against non-citizens, है ना, क्योंकि non-citizens के लिए वो law थोड़ी ना void होगा, क्योंकि उनको तो वो fundamental right available ही नहीं है. तो that is precisely what was held in the case of State of Gujarat versus Sri Ambika Mills, जहाँ पे कोर्ट ने कहा कि some laws apply to all person and some to citizens only. If a law is void in the second category, then the law may still be enforceable against non-citizens. ठीक है. तो ये एक तो पहला एक्सेप्शन है कि भले ही वो लॉ सिटीजन्स के लिए वॉइड होगा लेकिन नॉन सिटीजन्स के लिए वो लॉ एप्लीकेबल होगा. ओके. सेकंड केस इज विथ रेस्पेक्ट टू रेट्रोस्पेक्टिविटी. ठीक है. अब वी नो दैट 13(1) के अंदर वी डील विथ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, है ना. तो मान लीजिए अगर कोई लॉ है, इट वाज इनैक्टेड इन 1902 एंड कॉन्स्टिट्यूशन केम इन 1950. ठीक है. अब ये जो लॉ है ये इतने टाइम तक इट वाज अ वैलिड लॉ. ठीक है. इट ओनली बिकेम वॉइड वंस द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स बिकॉज नाउ दिस लॉ वायलेट्स सम फंडामेंटल राइट. बट टिल 1902 टू 1950 दिस वाज अ वैलिड लॉ. ठीक है. तो ये यहाँ पे जो भी हुआ है इस ड्यूरेशन में ये वैलिड होगा एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द सेकंड पॉइंट सेज कि 1950 में भी अगर आप मान लीजिए कोई सूट यहाँ पे अराइज हो रहा था 1930 में और वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, तो दिस सूट विल स्टिल बी डिसाइडेड एज पर दिस लॉ इवन दो दिस लॉ इज नाउ वॉइड. ठीक है. मतलब आप रेट्रोस्पेक्टिवली उसे वॉइड नहीं कर सकते. ओके. सो 13(1) इज ओनली प्रोस्पेक्टिव इन नेचर एंड नॉट रेट्रोस्पेक्टिव. Therefore, anything done prior to the commencement of the Constitution will be governed by the now void law. This was held in Keshavan Madhavan Menon versus State of Maharashtra. ठीक है. कि वो जो लॉ है वो 1950 में void होगा, उसके पहले अगर कुछ भी हुआ है तो वो उस लॉ से गवर्न होगा भले ही उसकी लिटिगेशन बाद में कंटिन्यू हो रही हो, है ना. बिकॉज वी नो दैट केसेस आर नॉट डिसाइडेड इन अ डे, right? So for example, if a cause of action arose in 1948 and it is still being heard in 1952, then it will be heard as per the previous law only, even though now that law is no longer valid. ठीक है. तो ये दो केसेस हो सकते हैं जहां पे भले ही वो लॉ वॉइड हो लेकिन तब भी हम उसे एनफोर्स कर सकते हैं. ओके. Now we come to another understanding, that is doctrine of eclipse. ठीक है. अब you know what is an eclipse, right? Eclipse का मतलब बेसिकली होता है shadowing something, है ना. आपको पता है lunar eclipse होते हैं, solar eclipse होते हैं. वहां पे the whole idea is that either the sun is hidden or the moon is hidden because of whatever the positioning of planets. ठीक है. सेम अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे है कि doctrine of eclipse का मतलब होता है कि something is being shadowed. ठीक है. अब इसका सिंपल मतलब ये है कि this is temporary और फॉर द टाइम बीइंग, है ना. मतलब ये परमानेंट नहीं है. ऑल इन ऑल ये हम बोलना चाह रहे हैं. तो ये जो डॉक्ट्रीन है दिस वाज इवॉल्व्ड इन भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी और ये जो डॉक्ट्रीन है ये अप्लाई होती है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस पे. ठीक है. अगर एमसीक्यू कभी आए कि डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स अप्लाइज ऑन व्हाट, देन द आंसर इज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस. ओके. ऑल्दो अभी रिसेंट कोई केस था, बहुत रिसेंट तो नहीं बट हाँ आई थिंक 20-30 years old, it's not recent at all. उस केस में I think there was only one finding, one case only in which the court said कि doctrine of eclipse can also apply to post constitutional laws. ठीक है. But there is no such authority of that case and still the correct answer to like what laws does doctrine of eclipse applies to, the answer will be pre-constitutional laws. Okay. क्या होती है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे अप्लाई होने वाली है डॉक्ट्रिन. अब सी हमें पता है कि अगर कोई फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करेगा कोई भी लॉ इन फोर्स, तो ये लॉ इन फोर्स
वॉइड हो जाएगा, है ना। अब मान लीजिए कि ये फंडामेंटल राइट ही अमेंड हो गया, या इवन बेटर डिलीट ही हो गया, पार्लियामेंट ने बाद में अमेंडमेंट किया एंड दे चेंज द फंडामेंटल राइट, डिलीटेड इट, अमेंडेड इट, व्हाटएवर, ओके। तो अब ये जो लॉ है जिसको हमने वॉइड करार दे दिया था, दिस लॉ विल बी रिवाइव्ड। क्यों रिवाइव होगा? क्योंकि इस लॉ के साथ जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि ये फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट है ना। अब वो फंडामेंटल राइट ही अगर नहीं रहा, इफ दैट फंडामेंटल राइट हैज बीन वाइप्ड आउट, देन व्हाई शुड दिस लॉ इन फोर्स बी वॉइड नाउ? दिस लॉ इन फोर्स शुड बी रिवाइव्ड। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स सेज। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का यही मानना है कि जो भी लॉज इन फोर्स हैं, आप जब उन्हें वॉइड बोलते हो अंडर 13(1), देन दे आर merely being eclipsed for the time being। अब अगर ये जो प्रॉब्लम थी इस लॉ में, अगर वो ही रेक्टिफाई हो जाए तो वो लॉ वापस से रिवाइव हो जाएगा, ओके। तो अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद अ फंडामेंटल राइट इज नॉट वाइप्ड आउट ऑल टुगेदर। उस लॉ को हम मानेंगे कि वो एक्लिप्स हो गया है, क्योंकि बाद में अगर फंडामेंटल राइट इज अमेंडेड एंड द इनकंसिस्टेंसी सीजेस टू एग्जिस्ट, then the eclipsed law will revive। ठीक है, ये आपका जनरली राइट टू प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि पहले राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(6), बट लेटर ऑन इट वाज डिलीटेड। ठीक है, तो जो भी लॉज थे which were held to be void for offending right to property, they now were revived। ठीक है, तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे अप्लाई नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है उसका रीजन भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, इफ यू रिमेंबर, वी स्टडीड द टर्मिनोलॉजी इन 13(1) एंड 13(2) very carefully, and there was a reason for that। The reason was this, to understand डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ठीक है, 13(1) में वो सिंपली बात करता है कि अगर कोई लॉ इनकंसिस्टेंट है तो वो वॉइड है। ठीक है, बट 13(2) talks about restrictions on the power of state। Sorry, I don't know what I've written। Restrictions on the power of state, वो बोलता है the state shall not enact any law which is taking away or abridging any of the fundamental rights। यानी कि वो स्टेट की पावर पे ही रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि स्टेट के पास कोई पावर ही नहीं है ऐसा कोई लॉ इनैक्ट करने की जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, है ना। तो यहाँ पे अगर स्टेट ने कोई लॉ बनाया तो दैट लॉ विल बी वॉइड अब इनिशियो, यानी वॉइड फ्रॉम द स्टार्टिंग, क्योंकि स्टेट के पास ऐसी कोई पावर ही नहीं थी। तो इसीलिए डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कैन नॉट अप्लाई हियर, क्योंकि इवन दो द फंडामेंटल राइट मे बी amended later on, but when the law was intended to be enacted, at that point in time the state did not have the power to enact that law। ठीक है, तो हम जो भी पावर देखेंगे वो स्टेट की, वो हम तब की देखेंगे when the state wants to enact that law। ओके, तो बाद में अगर फंडामेंटल राइट अमेंड होता भी है, डिलीट भी होता है, तो that still does not impact the restrictions on the state power that existed beforehand। okay, so such laws are void ab initio, और इनको आप रिवाइव नहीं कर सकते क्योंकि स्टेट के पास कोई ओरिजिनल पावर थी ही नहीं इस पर्टिकुलर लॉ को इनैक्ट करने की। ठीक है, तो दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कोर्ट ने यही बोला कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे अप्लाई नहीं होती है, वो सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे अप्लाई होती है जो ऑलरेडी फोर्स में थे जब कॉन्स्टिट्यूशन आया। ठीक है, तो वो एनीवे स्टेट की पावर की बात नहीं करती है। ओके, लास्ट है कि अगर आप किसी लॉ को 9th शेड्यूल में रख दो तो फिर वो लॉ वॉइड नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी लॉ था प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट वायलेटेड एनी फंडामेंटल राइट। ठीक है, अगर हम इस प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को 9th शेड्यूल में रख दें, जो आप बाद में देखोगे, विच इज बीन इनैक्टेड अंडर आर्टिकल 31B, 9th शेड्यूल की खास बात यह है कि जो भी लॉ 9th शेड्यूल में जाता है आप फिर उसे फंडामेंटल राइट्स के इंफ्रिंजमेंट के लिए चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, 9th शेड्यूल में इसलिए आपके देयर आर लॉट ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स, देयर आर लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स वाले लॉ जो आप फंडामेंटल राइट्स पे चैलेंज नहीं कर सकते। दे मे बी ऑफेंडिंग आर्टिकल 19, दे मे बी ऑफेंडिंग आर्टिकल 31,
बट दे आर नॉट ससेप्टेबल टू चैलेंज। ओके, तो यही बोल रहे हैं कि अगर आप कोई लॉ शेड्यूल 9 में रख दो तो एनीवे दैट लॉ विल नॉट बी वॉइड। ओके, ये अंडरस्टैंडिंग हम थोड़ा बाद में भी देखेंगे व्हेन वी एक्चुअली कम टू 31A 31B cases of Keshav Nand Bharti and all of the other cases. Okay. फिर हम आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पर। छोटी सी डॉक्ट्रिन है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पूरा लॉ वॉइड नहीं होता है, वो पार्ट जो इनकंसिस्टेंट है ओनली दैट पार्ट इज held to be unconstitutional. ठीक है, तो a law is void only to the extent of inconsistency or contravention. अगर पॉसिबल है उस पार्ट को सेपरेट करना तो दैट पार्ट विल बी सेपरेटेड एंड द होल लॉ विल नॉट बी वॉइड। ठीक है, लेकिन अगर इट इज नॉट पॉसिबल कि हम उसे सेवर नहीं कर सकते तो फिर द होल लॉ विल हैव टू बी वॉइड। एंड द लैंडमार्क केस ऑन दिस डॉक्ट्रिन इज द केस ऑफ RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके, ऑलराइट, ठीक है। अब ये जो टेस्ट था, टेस्ट ऑफ severability as laid down in RMDC versus Union of India, that also became important in the case of Rajendra N. Shah versus Union of India, a 2021 judgment। ठीक है, आई होप आपने ये सुना। ये केस था विथ रेस्पेक्ट टू द अमेंडमेंट्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, है ना, जो पार्ट 9B था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which was added by the 97th constitutional amendment. Court basically held this amendment as unconstitutional। ठीक है, तो कोर्ट में जब वो बात कर रहे थे 9th शेड्यूल की, सॉरी 9B की, तो द इशू वाज कि उसमें से दे हैव सेव्ड सर्टेन प्रोविजंस। ठीक है, अब आप जब ये केस पढ़ोगे आपको तभी समझ आएगा कि वहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात थी और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात थी। तो कोर्ट का मानना था कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट सेवर्ड देम। कोर्ट ने वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई की और कहा कि इवन दो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बट सम पार्ट ऑफ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बाय अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन। ठीक है, तो वो जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो डिसेंटिंग जज थे, मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, बट ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कैन नॉट अप्लाई हियर। ठीक है, उनका मानना था कि ये जो टेस्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं और ये जो पार्ट है ये 9B से सेवर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उनका मानना था कि लेजिस्लेचर की इंटेंशन थी कि वो पार्ट एज इट इज इनैक्ट हो। ठीक है, and the legislature would not have enacted that part without this inconsistent issue. So that is why the court, even though the majority of the judges did allow doctrine of severability to apply, but there was a dissent also who said कि the doctrine of severability की जो test हैं those are not being fulfilled here. Okay, तो ये हम एक्चुअली बाद में देखेंगे जब आप एक्चुअली ये वाला केस एनालिसिस में पढ़ोगे। ठीक है, तो दैट दिस डिस्कशन विल बी इंपॉर्टेंट देयर। फिर हम आते हैं एक लास्ट पॉइंट पे, दैट इज वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है कि क्या आप अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव कर सकते हो। क्या आप बोल सकते हो कि वी डोंट वांट आवर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, कैन यू से दैट इफ यू हैव राइट टू लाइफ देन डू यू आल्सो हैव राइट नॉट टू लिव। ओके, सो द आंसर इज नो, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वेव्ड। ठीक है, क्यों? इसके लिए दो केसेस हैं, बहराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड बशेश्वर नाथ वर्सेस IT कमिश्नर। दोनों केसेस में कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल के लिए तो है, दैट इज वेरी ट्रू, लेकिन इनका लार्जर पर्पस है टू बेनिफिट द सोसाइटी, टू बेनिफिट द पब्लिक। ठीक है, तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल वेव नहीं कर सकता। ठीक है, ये पब्लिक पॉलिसी का पार्ट है एंड इट इज नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल राइट एंड दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बी वेव्ड। बशेश्वर नाथ में भी कोर्ट ने यही बोला कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वेव्ड बाय इंडिविजुअल्स। ऑल्दो बशेश्वर नाथ में जो डिसेंटिंग ओपिनियन था उनका मानना था कि कुछ फंडामेंटल राइट्स को वेव कर सकते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स को वेव नहीं कर सकते, लेकिन मेजॉरिटी ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स को वेव नहीं कर सकते। ओके,
This is different from the position in America because in the US, fundamental rights can be waived. Okay. So that is essentially your Article 13. And I have already uploaded these slides. So please go through them and remember the landmark case clause. ठीक है, आपको जैसे कि दिख रहा है केस क्लॉज बहुत ही लिमिटेड डिस्कस्ड हो रहे हैं बिकॉज दे आर ओनली द लैंडमार्क केसेस, सो प्लीज डोंट स्किप देम, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट.